Good morning, students. Very soon I am going to start the first lesson of your book, Beehive. Now, in this lesson, there is a hidden moral, that is, that we should always have faith in God, because faith can move mountains. Good morning, students. Very soon I am going to start the first lesson of your book, Beehive. The name of this lesson is A Letter to God. Now, there is a hidden moral in this particular story. That is that we should always have faith in God, because faith can move mountains. But what should we put in our faith in? Naturally, we should always put our faith in God. This is the question the story delicately poses. So the main protagonist of the story is Lencho, who is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. When his crops, that farmers, they grow crops, they try to grow crops throughout the year, and at the end of the year, when their crops are ripened, it's a joyous moment for them, because the time for harvesting, and after harvesting and reaping, they sell their crops in the market. So Lencho had also done the same thing. He was a poor farmer, a simple minded farmer, an honest farmer who had strong faith in God. His only source of living was growing crops, and with the help of this, he was to fulfill all his family members' responsibilities. So he was an ideal father, an ideal husband, and an ideal, you can say, an ideal common man who was very dutiful and had full faith in God. Now, he was waiting for a rich harvest, and he was waiting for a good income. But what happened? Something happened. A storm had come, hailstorm, which destroyed all his crops, and naturally he had only hope of getting help from God. So he wrote a letter to God, having firm faith in him, asking for 100 pesos. Now, does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers and questions would be, and guess how the story continues. Alright, now I am continuing the story. Yes. Now, as I have already told you, that Lencho is the main protagonist, the main character in the story, around which the story develops. Now, something is told about his house. The house, the only one in the entire valley. His house was the only one house in the entire valley which was set upon the crest of a low hill. एक छोटी सी हिल के ऊपर टॉप पे उसकी खुद लेंचो की एक अकेले का ही मकान था, आसपास कोई और रहते नहीं थे. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और इस हाइट से जहाँ पे उनका घर था, उनसे वहाँ क्या दिखता था उसके घर से? द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप्स विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो वो अपने घर से सामने जब नीचे देखते थे तो उनको एक तो रिवर दिखती थी और उनकी फील्ड जिसमें राइप कॉर्न्स थे. एंड नेचुरली he knew that at the end, that just he was waiting for a good rainfall, and then he knew that he would
get a good harvest, and then by selling the harvest, the crops, he would earn a lot of money. He was hoping for this moment. The only thing the earth needed was a downpour. As I have told you, only thing that his crops needed was a downpour, was a rainfall, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So throughout that morning, पूरे दिन में लेंचो कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ अपने फील्ड्स को बहुत ही इंटीमेटली देख रहा था और स्काई की तरफ बार बार इस आशा से देख रहे थे कि वो कब डाउनपोर हो, कब रेनफॉल हो. Now we are really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. तो वो अपनी वाइफ से बोले, जो अंदर खाना बना रही थी, रात का सपर डिनर बना रही थी. तो लेंचो ने अपनी वाइफ से कहा कि आसमान को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी रेनफॉल होने वाली है. तो उसकी वाइफ ने कहा, जो मतलब द वुमन मतलब उनकी वाइफ जो अंदर खाना बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि यस, गॉड की अगर विश हो तो रेनफॉल जरूर होगी. द ओल्डर बॉयज मीन रेंचोज सन्स हु वेर बिट एल्डर, दे वर वर्किंग इन द फील्ड. द मीन वाइल द स्मॉलर वंस, हिज स्मॉलर चिल्ड्रन, स्मॉलर बॉयज वेर प्लेइंग नियर द हाउस. एंड द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल. तो वो जो लेडी जो अंदर थी वो अपने बच्चों को अंदर डिनर के लिए बुलाई. So it was during that meal, just as लेंचो had predicted. लेंचो पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, पहले से ही सोच लिए थे कि लेंचो को पहले से ही पता था कि बहुत जल्दी big drops of rainfall was going to fall. All right. So in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. As he could see huge mountains of clouds in the northeast direction approaching. तो clouds को देखते हुए वो समझ गया था कि बहुत जल्दी rainfall होने वाली है. The air became fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो लेंचो घर से बाहर निकल के इस विश में था कि जैसी रेनफॉल होगी तो फ्रेश ड्रॉप्स ऑफ रेन उनकी बॉडी पे, उनके शरीर पे गिरेगा, उनको फ्रेशनेस फील होगी. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू पॉइंट्स. तो जैसे ही वो अंदर पहुँचे तो थोड़ी बहुत बारिश की बौछार उनके बॉडी में जा चुका था, तो उनको सूदिंगनेस फील हो रही थी. तो वो अंदर जाके बोले कि ये रेनफॉल जो गिर रही है, ये जो बाहर बारिश हो रही है, these rain drops are not actually rain drops, they are like new points, because very soon, because of this heavy rainfall, he was going to get a good harvest, and then selling the crops he was going to earn much money. So he compared the raindrops with new points. So he compared the raindrops with new coins. The big drops are 10, तो वो compare करने लगे. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. तो मन में उनकी बहुत सेटिस्फैक्शन थी. वैसी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लेके वो अपने फील्ड जो एकदम राइप कॉर्न से भर चुका था, विद इट्स फ्लावर्स, ऑलराइट, ऐसे लग रहा था कि उसके ऊपर रेनफॉल ने कर्टन से ढक दिया हो उनकी पूरी फील्ड फुल ऑफ राइप कॉर्न्स को. बट सडनली क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, ऑलराइट, एंड अलॉन्ग विद द रेन लार्ज हेल स्टॉर्म बिगैन टू फॉल. फिर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लगी. पहले तो अच्छे से बारिश हो रही थी, फिर अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लगी, एंड अलॉन्ग विद इट हेल स्टोन्स गिरने लगा आसमान से. तो दीज टूली डिड रिजेंबल्स न्यू, और उसको लगा कि हेल स्टोन जो है न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह है. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट. तो उसके जो बच्चे थे बॉयज़, वो घर से बाहर निकल गए और इन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लगे, जैसे कि वो फ्रोज़न पर्ल्स हो. पर्ल्स मतलब मोतियाँ, जैसे मोतियाँ फ्रीज हो चुकी हो, लाइक फ्रोज़न पर्ल्स को उन्होंने कंपेयर किया है विद द हेल स्टोन्स. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन. आई होप इट पासेस क्विकली. नाउ जैसे जैसे हेल स्टोन्स फॉल होने लगे
Alright, hail storm होने लगी, रेंचो को डर लगने लगा. He started feeling scared. Alright, he understood that something wrong is going to happen with him. So he said that it is really getting bad. The weather was becoming bad to worse. Exclaimed the man, I hope it passes away. और वो बोलने सोचने लगे कि काश ये जल्दी से हेल स्टॉर्म बंद हो जाए. It did not pass quickly, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक वो हेल स्टॉर्म होने लगी. ऑलराइट, और उनके घर के ऊपर सारे हेल स्टोन्स गिरने लगे. फिर उनके घर पर, उनके गार्डन पर, हिल साइड्स पर, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. एंड धीरे धीरे, क्योंकि लेंचो का घर एक वैली में थी. एक वैली, यू नो व्हाट इज़ अ वैली? अ वैली इज़ अ पोर्शन विच इज़ सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड. तो एक ऐसी वैली के हिल की चोटी पर उसका घर था. तो पूरी वैली वेरी सून हेल स्टोन से भर गई. द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. ऐसे लग रहा था कि पूरी फील्ड जो है सॉल्ट से कवर हो चुका था, बिकॉज वहाँ पे पूरी स्नो से भर चुका था वो पूरी वैली. नॉट अ लीफ रिमेन. एक लीफ भी बची नहीं थी पेड़ों पर. सब टूट टूट के गिर रहे थे बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. The corn, which Lencho had expected to give him a lots of money after selling them in the market, उसके सारे corns उस hailstone की वजह से destroy हो गए. The flowers were gone from the plants and Lencho's soul was filled with sadness. And naturally plants में जो flowers थी वो पूरी destroy हो चुकी थी because of the hailstone. And Lencho की soul जो है वो sadness से भर गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब storm over हो चुका, वो अपने फील्ड के बीच खड़े हो गए और वो अपने सन्स को बोलने लगे. A plague of locusts have left more than this. तो उसने क्या कहा कि अगर लोकस्ट, वो छोटे छोटे पेस्ट होते हैं जो ग्रुप में आके क्रॉप्स को खा जाते हैं. तो लेंचो ने अपने डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स को देखकर, बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, अपने बच्चों से, अपने बॉयज़ से कहने लगे कि अगर ये लोकस्ट भी आते तो भी वो इतना डैमेज नहीं करते जितना कि ये हेल स्टोन ने उनके क्रॉप्स को डैमेज किया. द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, मीन्स ऑल हिज क्रॉप्स वे डिस्ट्रॉयड. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. So he made so he was feeling very sad, and he accepted this fact that on that particular year he will be having no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry. That night उस घर से, क्योंकि लेंचो का सिंगल एक ही घर था उस पर्टिकुलर वैली में, तो उस घर से सभी लोग मायूस होके कहने लगे कि दैट नाइट वॉज वेरी सॉरफुल. किसी ने कहा कि हमारे सारा काम जो था, मेहनत जो थी, एफर्ट्स जो हमने पुट किया था, टीडियस वर्क जो हमने किया था थ्रू आउट द ईयर, इट ब्रॉट नो रिजल्ट. देयर इज़ नो वन हु कैन, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है. एंड वी हैव टू गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम लोग को हंगर में ही बिताना पड़ेगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस particular family में, alright, in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, as I told you कि लेंचो का घर solitary house था. There was no other house. He had no other neighbors. So his house was the single one in the middle of the family. तो उस लोनली सॉलिटरी हाउस में से सिर्फ लेंचो के मन में एक होप था that he could get help from God. So as I had told you before, children, that Lencho had firm, resolute faith in God. He knew that whenever he would be in trouble, there would be only one person he could ask help from. That would be God. So don't be upset. So he told his family members not to be upset, even though this seemed like even though they thought that they were having total loss, but not to lose hope. Remember, no one dies of hunger. तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलने लगे कि कोई भूख से नहीं मरता है. तो
that's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what deep in one's conscious. So throughout the night, Lencho kept on thinking about this particular hope. He had only one hope, that is to ask help of God. He knew that God, whose eyes whose eyes would be everywhere, like whose eyes could even see even what is hidden in one person's conscious. So children, whenever we do something wrong, somebody inside tells us not to do it. What is it? It is our conscious. Conscious means God. So Lencho knew that God would help him. Lencho was an ox of man. Lencho was an ox of a man means he was a very hard working person. He used to work like an animal in the fields, but still he knew how to write. Though he was a hard working, poor, down to earth, innocent, simple minded farmer, but that didn't mean that he was illiterate. He knew how to write. So the following Sunday at daybreak, जैसी सुबह हुआ दूसरे दिन संडे थी, लेंचो ने एक लेटर लिखी. तो लेटर लिखने के बाद वो खुद उस लेटर को कैरी करके टाउन ले गए, अ प्लेस इन द मॉल, टाउन ले गए एंड प्लेस इन द मेल. और वो सोचे थे कि वो खुद ही उस लेटर को लिख के टाउन में ले जाके मेल करेंगे. इट वॉज नथिंग लेस दैन a letter to God. Just simply he wrote a letter to God, and he thought of taking it himself to the town and mail it. God, what did he write in that letter? He wrote that if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. Alright children? And in order to sow my field again and to live until the crop comes, because of the hailstorm. And he wrote the letter on the envelope. He wrote to God on the envelope. Means, what did Lencho write in his letter to God? He simply wrote that he was in trouble. If God wouldn't help him and his family, then his whole family along with him, they would remain hungry throughout the year. So he needed 100 pesos so that he could again sow his field, alright, and again he could grow crops. Because he knew that God, such a firm faith he had in God that he knew that the letter was going to reach God, and God would read his letter and would surely help him out. So again he started describing in detail how his crops got destroyed. And then what did he write on that envelope? What address did he write? Only 2 words: to God. So he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to the town and the post office. He placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो अपना प्रोसीजर बता रहे हैं. उन्होंने क्या किया, लेटर लिखने के बाद वो टाउन गए, पोस्ट ऑफिस जाके एक स्टैम्प रखा उस लेटर के ऊपर और मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter. तो जब पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय के हाथ वो लेटर आया तो वो पहले तो बहुत he started laughing heartily, like he was thinking who would that foolish person to be who had written the letter जिसमें उन्होंने to God लिखा हो. तो उन्होंने उस लेटर को हंसते हुए ऑलराइट पोस्टमैन को, हेड पोस्टमास्टर को दिखाया. Never in his career as a postman he had known that address. पूरे उसके कैरियर में उन्होंने ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था जिसकी एड्रेस एक ऐसी अनोखी एड्रेस थी, टू गॉड. नाउ पोस्टमास्टर, जो एक फैट एमिएबल
पोस्ट मास्टर एक हेफ्टी पर्सन थे, फ्रेंडली पर्सन थे, ऑलराइट। तो उन्होंने पहले तो उनको भी हंसी आई, इवन एट फर्स्ट ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट अगेन आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल ही बिकेम सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को डेस्क में टैप करते हुए उन्होंने कमेंट कहा, What fate! I wish I had the fate of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. So even he was feeling shocked. He was shocked to find कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी एक पर्सन है जिसको गॉड पर इतना फेथ था, इतना फर्म फेथ था, एंड ही बिकॉज ऑफ दिस फेथ इन गॉड ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड corresponding with God through a letter. So he started thinking about this fact कि जिस पर्सन ने वो लेटर लिखा होगा वो कितना सिंपल माइंडेड होगा और वो कितना फर्म फेथ रखता होगा गॉड को, कि उसने गॉड के साथ थ्रू लेटर कम्युनिकेट करने की कोशिश की। कभी ऐसा होता नहीं है, हम अपने मन में प्रे करते हैं लेकिन डायरेक्टली गॉड को लेटर नहीं लिखते। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, तो वो नहीं चाहता था कि जो भी राइटर था उस लेटर का, उसकी जो फेथ थी गॉड के ऊपर वो हटे नहीं, ख़त्म नहीं हो जाए। तो पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आई, आंसर द लेटर। उसने सोचा कि वो खुद गॉड के तरफ से उस लेटर को आंसर देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेन। तो जैसे ही वो आंसर करने के लिए सोचे तो उन्होंने लेटर को पढ़ा। पढ़ते ही उनको समझ में आया कि सिर्फ एक गुडविल रखना, एक सिंपैथी रखना और एक कंसिडरेट फीलिंग रखना काफ़ी नहीं होगा उस लेटर की आंसर देते वक्त। अलॉन्ग विद इंक एंड पेपर ही ऑल्सो नीडेड समथिंग मोर, मनी। सो बट ही स्टक टू रेजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने रेजोल्यूशन ले चुके थे, वो मन प्रण ले चुके थे कि वो उस जो भी पर्सन है जिसने लेटर लिखा है गॉड को, उसकी जो गॉड के प्रति फेथ थी वो टूटने नहीं देंगे। तो व्हाट डिड ही डू, ही आस्क्ड फॉर मनी। तो उसको पता था कि दैट मैन वाज इन नीड ऑफ मनी एंड ही वाज आस्किंग मनी फ्रॉम गॉड, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी मांगी। ही हिमसेल्फ ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी से भी कुछ पोर्शन दिए, एंड सेवरल फ्रेंड्स से भी पूछा जो ऑब्लाइज किए ये एक्ट ऑफ चैरिटी करने पर। तो इस पोस्ट मास्टर ने खुद भी अपनी सैलरी की पोर्शन दिए, अपनी एम्प्लॉयज़ को भी कहा कि वो भी कुछ मनी दे, और वो अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि वो ये एक्ट ऑफ चैरिटी करे। इस तरीके से उन्होंने गैदर किया टू गिव टू लेंचो 100 pesos. So he was able to send them a little more. But पूरी 100 pesos तो नहीं गैदर कर पाए, only a little more than a half. So he put the money in an envelope addressed to Lencho. तो उन्होंने मनी को एनवेलप में डाला और एड्रेस किया सिंपली टू लेंचो, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड। और उस मनी के साथ एक लेटर था, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर किया था गॉड। The following Sunday, the next Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो दूसरे संडे जब आया तब लेंचो थोड़ी जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुँचे, and he asked whether there was a letter for him. He was sure that God was going to send him a letter, in return, in form of an answer. So it was the postman himself who handed the letter to him. तो postman ने खुद वो letter hand किया, वो letter जो postman ने खुद लिखा था with 75 pesos in it. तो experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on for his office. तो उनके मन में एक contentment थी, एक satisfaction था, किसके और यही satisfaction जो उनके हार्ट में थी वो अपने एक्सप्रेशन से उनके पोस्टमैन के एक्सप्रेशन में नज़र आ रही थी। तो वो सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने एक गुड डीड किया, एक गुड काम किया। तो वो अपने ऑफिस में से देखने लगे। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी।
मनी को देख के लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था, बिकॉज ही न्यू दैट देयर वाज सम पर्सन नोन एज गॉड जो उनकी विश को पूरा करेंगे और मनी भेजेंगे। वो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे। वो लेंचो कभी सोच ही नहीं सकता था कि गॉड पर्सनली कैसे उनको लेटर दे सकते हैं। बट ही डिडंट थिंक अबाउट इट, ही न्यू दैट देयर वाज गॉड एंड गॉड वाज गोइंग टू हेल्प हिम आउट, सो ही डिडंट शो एनी expression of surprise on seeing the money. Such was his confidence. Confidence of what? Of having faith in God. But he became angry. लेकिन money को देखते वो instead of being happy and contented, he became angry. उनको गुस्सा आया. He counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho who had requested. तो वो सोचने वो क्यों गुस्सा हुआ पैसों को देख के कि गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। लेंचो ने उसके मन में आया कि लेंचो ने 100 पैसोस मांगा था, गॉड उनको 100 पैसोस ही दिए होंगे, गॉड कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते थे। ऑलराइट, तो इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑन हिज ब्राउ। तो इमीडिएटली उसी वक्त लेंचो विंडो में गए, एक पेपर मांगा, इंक लिए और राइटिंग टेबल में तुरंत ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर एंड ही हैड ऑलरेडी wrinkled his brows। गुस्से में हम अपने आईब्रोज को क्रूकेड कर देते, wrinkle करते, तो वो गुस्से में उन्होंने एक लेटर लिखा। ऑलराइट, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp and licked it and everything. फिर जब उसने लेटर कंप्लीट कर लिया, वापस वो विंडो में जाके वो एक स्टैम्प लिया और उस लेटर में उसने एफिक्स कर दिया, पेस्ट कर दिया। द एनवेलप, और वो गुस्से में था ही, उसने एनवेलप को जोर से फिक्स किया with a blow of his fist, and the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said God. तो जैसे ही लेटर को मेल बॉक्स ने लेंचो ने, क्योंकि पोस्ट मास्टर अपने आप को लेंचो के सामने लाना नहीं चाहता था, वो लेंचो को समझाना नहीं चाहता था कि उन्होंने ही लेटर लिखा था, ऑलराइट, रिप्रेजेंटिंग गॉड अलॉन्ग विद द मनी ही सेंट। तो जैसे ही लेंचो ने मेल बॉक्स में लेटर डाला, पोस्ट मास्टर गए और तुरंत उन्होंने लेटर को पढ़ने लगे। उसमें क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 पैसोस। उन्होंने कहा कि जो मनी मैंने पूछा था, आपसे मांगा था, सिर्फ 70 पैसोस ही मुझे मिला, तो सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो उन्होंने कहा कि गॉड आपने तो मुझे भेजा ही होगा पूरे 100 पैसोस, लेकिन मुझे मिला 70 पैसोस, तो रिमेनिंग जो मनी है वो आप मुझे भेज दीजिए, बिकॉज आई एम वेरी मच इन नीड ऑफ इट, उसको बहुत ज़रूरत थी। फिर उसने ये भी लिखा कि नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो उन्होंने उस लेटर में ये लिखा कि आप मनी तो भेजना, रिमेनिंग मनी, लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चीटर्स दिखते हैं मुझे, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब पोस्ट लेंचो, मतलब इससे इस लेटर से लेंचो क्या बोलना चाहता था गॉड को कि गॉड ने तो उनके लिए पूरी 100 पैसा भेजा ही होगा, ही हैड फुल फेथ इन हिम, फॉर्म फेथ इन हिम, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चीटर्स हैं, उन्होंने उनमें से पैसे निकाल लिए होंगे, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब वो रिमेनिंग मनी भेजे मेल से ना भेजे। सो दिस शोज हाउ मच फर्म फेथ दिस मैन लेंचो, अ पुअर इनोसेंट सिंपल माइंडेड हार्ड वर्किंग फार्मर, हैड firm faith in God. So we should also have firm faith in God, because in times of trouble only He can help us, because He has destined, because He has created our destiny. He knows everything what is going to happen to us in from beforehand. So we should always have firm and resolute faith in God. This lesson teaches us this moral.